7 سے 10 منٹ ہے. 10 منٹ سے آگے نہیں آپ جائیں گے. 7 منٹ سے 10 منٹ تک آپ بول سکتے ہیں. خدا کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلام کی ہو. خداوند یسوع مسیح نے جو پاک کلمات اپنی زبان مبارک سے فرمائے، ان میں سے پہلا کلمہ جو معافی کا کلمہ ہے، آج ہم اس کے مطابق سیکھیں گے کہ وہ کلمہ کس وقت کن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور آج ہمارے لیے اس میں کیا افادیت ہے اور ہمارے لیے کیا فضیلت چھپی ہے اس کلمے میں. تو ہم کلام مقدس کی ورس کو پڑھیں گے. لوکا رسول کی انجیل 23 باب اور 34 آیت. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس کے کپڑوں کے حصے کیے اور ان پر کرا ڈالا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہم نے رات کو آخری فسح کی عبادت کی اور وہ تمام رسومات جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کی ان کو منایا. اور اب ہم خداوند کو دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں. تو اس دوران میں جو کچھ بھی ہوا ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ رات اس پہر سے لے کر اب تک مسیح یسوع کے ساتھ کس طرح سے وہ صلیب پر آئے اور کیوں انہوں نے یہ الفاظ جو معافی کے دعا تھی انہوں نے اپنے باپ سے کی. جب خداوند یسوع مسیح نے آخری فسح کی ضیافت کو ختم کیا تو وہ باغ گتسمنی میں گئے اور ان کے شاگرد ان کے ساتھ تھے اور انہوں نے باغ گتسمنی میں دعا. اور وہ جب دعا کر رہے تھے تو ان کے جو خون کے قطرے بن کے ان کے پسینہ جو تھا وہ خون کے ٹپکوں کی مانت بہہ رہا تھا. اور وہ بہت جو تھے وہ ان کا دل بہت زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھرا ہوا تھا. اور وہ دعا مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے باپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے لیکن پھر بھی میری نہیں بلکہ کس کی؟ تیری مرضی پوری ہو. یعنی کہ وہ اس بات کو چاہتے تھے کہ خدا کی مرضی کو پورا کروں. جب خداوند یسوع مسیح نے دعا ختم کی اس کے بعد جو ہے خداوند یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کو اپنی طرف آتے دیکھا. اور جو ہی یہودا اسکریوتی نے خدا کا بوسہ لیا تو ساتھ ہی پیچھے سے اس کے رومی فوج جو ہے وہ ہمیں آتی نظر دکھائی دیتی ہے. اور رومی فوج یسوع مسیح کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا تو مسیح ہے؟ اور وہ فرماتا ہے کہ ہاں میں ہوں. کیونکہ ہم نے پاک کلام میں یہ سیکھا ہے پہلے چند جو ہم لوگ بائبل اسٹڈی کرتے رہے ہیں تو خداوند نے کہا میں جو ہوں سو ہوں. تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مولود مقدس خدا کا کلمہ ہے، خود خدا کا بیٹا ہے. اور اس نے کہا کہ میں ہوں اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اسے گرفتار کیا اور سردار کاہنوں کے پاس لے گئے. اور مذہبی عدالت ابھی دن نہیں ہے، ابھی رات ہی ہے. صبح سویرے مذہبی عدالتیں کھول دی گئی اور خداوند یسوع مسیح کو جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا کہ اسے مجرم ٹھہرایا جائے. اس سے بیشتر ہی سردار کاہنوں نے جھوٹے گواہوں کو حائل کر رکھا تھا. انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے وہ ان جھوٹے گواہوں کو اس کے لیے تیار کر لیا کہ فلاں بندہ یہ کہے گا اس کے خلاف، فلاں یہ کہے گا. اور جب ان گواہوں کو سامنے لایا گیا تو خدا کی قدرت دیکھیں کہ ان کو آپس میں وہ جھگڑنے لگے، ان کا بحث و مباحثہ آپس میں ہونے لگا اور وہ خدا میں جو ہے گناہ کو ثابت نہ کر پائے. کیونکہ خدا جو ہے وہ ایک برے کی مانند وہ جو ہے وہ صلیب پہ چڑھنے والا تھا اور اس کا لہو بہانے کے لیے اس کو لے جایا جا رہا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک بچڑے کو، ایک بڑے کو جب قربانی کے لیے پیش کیا جاتا ہے تو اسے پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں، کہیں اس میں کوئی نقص تو نہیں. یسوع مسیح کو بھی اسی طرح سے بے عیب ثابت ہونا تھا کیونکہ وہ بے عیب بڑا ہے. خدا کے پاک کلام کے مطابق کہا گیا ہے دیکھو وہ خدا کا بڑا جو جہان کے گناہ
उठा लिए जाता है। हालेलुया। वो हमारे लिए बेअब बर्रा बन गया। जब मजहबी अदालतों में उसकी ये बात साबित ना हुई कि वो मुजरिम है, तो सियासी अदालत में ले जाया गया। पिलातुस के सामने उसको खड़ा कर दिया और कहा गया कि ये मुजरिम है। पिलातुस ने कहा कि बताओ इसने क्या जुर्म किया, तो वो साबित ना कर पाए। और उसी वक्त पिलातुस की बीवी को ख्वाब में दिखाई दिया और फरिश्ता ने उसे बताया कि ये शख्स बेऐब है और अगर तेरा शौहर इस पर इल्जाम दे तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे शौहर पर गजब आ जाए। और पिलातुस की बीवी अपने शौहर के पास गई और उसने उसको सारा माजरा सुनाया। और पिलातुस ने कहा कि मैंने इसमें कोई गुनाह नहीं देखा। और पिलातुस ने पानी मंगवाया और अपने हाथ धो लिए और कहा कि अगर मैं उसे मुजरिम ठहराता हूं तो इसका खून तुम यहूदियों के सर और उन तमाम लोगों के सर है जो इसको मुजरिम करार देते हैं। उसने अपने आप को इस बात से सरबाज कर लिया कि मैं इसमें शामिल नहीं। यहूदी बहुत चालाक थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, ईद फसह के मौके पर जब किसी को छोड़ा जाता है तो तू हमारे लिए बराबा को छोड़ और यीशु को मसलूब कर। और ये सब बातें तय थी इसलिए क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब होना जरूर था। और जब बराबा को छोड़ दिया गया और मसीह को सलीब के लिए उसको लिचाया जाने लगा तो खुदावंद यीशु मसीह के जिस्म पर कोड़े लगाए गए। और जब कोड़े लगाए गए तो एक मुसन्निफ कहता है कि उस कोड़े के लगने से उसके जिस्म की हड्डियां नजर आने लगी। यानी कि उस कोड़ा जब कोड़े लगा रहे थे तो उसमें लोहा और हड्डियां उस कोड़े के ऊपर लगाई गई थी। क्योंकि जब इंसान को जब तकलीफ होती है, उसका जिस्म नोचा जाए तो कैसा महसूस होता है। और खुदावंद यीशु मसीह को जब कोड़ा मारा जाता तो उसका गोश्त उसके जिस्म से जुदा हो जाता और उसकी हड्डियां जो नजर आने लगती। और उसने मुसन्नफ ने कहा कि मैं उसके जिस्म की हर हड्डी को गिन सकता हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने उसको मार मार कर इस कदर उसके जिस्म को जख्मी कर दिया कि बयान से बाहर है। और खुदावंद यीशु मसीह का जिस्म जो है वो मुकम्मल तौर पर खून से भर गया। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को भारी सलीब उठवाई गई और कोहे कलवरी की तरफ रवाना किया गया और कहा उठ अपनी सलीब उठा और उस मकाम तक चल जिसका नाम खोपड़ी है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खोपड़ी के मकाम की तरफ रवाना हुए और रास्ते में वो बार बार गिरते हैं, वो बार बार वो जो है अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उनका खून जो है वो तो बागे गतसमनी से बहना शुरू हो गया कि बागे गतसमनी में उनके लहू जो है, उनके पसीना जो है वो लहू बनकर टपक रहा था। और उसके बाद वो जब चलते हैं कोहे कलवरी के मकान की तरफ चलते हैं तो बार बार गिरते हैं क्योंकि उनके जिस्म में वो कमजोरी है। तो इंसान ना जिस्म रखते थे और उन कुव्वत इतनी मतलब इस तरह से थे कि उनका जिस्म कमजोरी फील कर रहा था। और रास्ते में जब वो बार बार गिरते तो फिर सिपाही उनको मारते और कहते कि अपनी स्लीव उठा और तो कोहे कलवरी की तरफ चल। अब एक रास्ते में एक शख्स उनको मिलता है जिसका नाम पतरस है और पतरस खुदावंद यीशु मसीह की स्लीव को उठाता है और उन्हें कोहे कलवरी तक पहुंचाता है। और अब वक्त था तारीख के मुताबिक 8 से 8:30 बजे के करीब ये वक्त था, सुबह जुम्मे का दिन। और खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर लटकाने की तैयारी की गई और खुदावंद यीशु मसीह के हाथों और पांवों पे कील ठोके गए और उसे जो है सलीब पर लटका दिया गया। और लटकाने के बाद जो है खुदावंद यीशु मसीह ने निगाह की। खुदावंद यीशु मसीह ने देखा उन लोगों को जो उसके सामने खड़े थे, वो उन्हें लान तान कर रहे थे, आहो नाला हो रही थी, शोरगुल हो रहा था और बहुत से लोग जो है वो उसके खिलाफ बोल रहे थे। वो रोमी जो फौज थी वो भी उसके सामने थी
जिन्होंने उसके कपड़ों को उतार कर उन्हें फाड़ा, उन्हें रेसा रेसा किया, उन पर कुर्रा डाला, वो सरदार काहिन जो मजहबी अदालत के थे वो भी उसके सामने थे। और खुदावन ने उन पर निकाह की और क्या कहता है कि ऐ पाप, उसने खुदा को अपने असली जो रिश्ते हैं, जो उसका असली रिश्ता था, उससे पुकारा और कहा ऐ पाप, और ऐसी मोहब्बत से पुकारा कि मेरे बाप का दिल नरम हो जाए। इसलिए कि खुदावंद यीशु मसीह पर जो जुल्म ढाए जा रहे थे, एक बाप की बर्दाश्त से बाहर, कोई बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके बेटे को इस तरह से मारा जाए। उसने क्या कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे खातिर तोड़ा जाएगा और मेरा खून जो तुम्हारी खातिर बहाया जाएगा। जिस तरह अंगूर के शीरे को निकालने के लिए उसे कुतला जाता है, उसे रौंदा जाता है और उसमें से एक एक बूंद निकाली जाती है, खुदावंद यीशु मसीह के लहू को इसी तरह से उसके जिस्म से निकाला जा रहा था। और वो सर से लेकर पांव तक लहू लहान थे और उसके सर पे जो कांटों का ताज रखा गया था वो भी कोई आम कांटे नहीं थे, वो जहर वाले पॉइजनिंग वाले थे। और वो जब उसके सिर में जो है उसको ताज को रख के दबाया गया, उनकी कोशिश थी कि ये अपने हवास को बाख्ता कर जाए, इनके हवास बाख्ता हो जाएं, लेकिन खुदावंद पर वो असर ना करे। खुदावंद पूरे होश और हवास में सलीब पर थे, वो सब कुछ जान रहे थे कि मेरे साथ क्या कर रहे हैं। और ये तमाम नविश्तों के मुताबिक, तमाम जो है सहीफों के मुताबिक, तमाम पेशनगोइयों के मुताबिक हो रहा था। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से उनके लिए दुआ मांगी कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते हैं, वो नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। वो खुद खुदा के बेटे को मसलूब करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और खुदावंद यीशु मसीह ने जो मोहब्बत से भरा है, जो प्यार से भरा है, जो हमारी हलाकत नहीं चाहता, वो माफी मांग रहा है। खुदावंद ने ना सिर्फ खुद उनको माफ कर दिया, बल्कि अपने बाप से उनकी सिफारिश की, उनकी शिफायत की और कहता है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये कलमा आज हमारी जिंदगी में क्या काम करता है। तब भी लोग इस बात से बेखबर थे और नहीं जानते थे कि हमारी हकीकी और बुनियादी जरूरत क्या है। और आज भी हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि हमारी हकीकी और बुनियादी जो हमारी जरूरत है वो क्या है। तभी लोग माफी ना मांग सके। आज भी जब हम किसी को कहते हैं कि मेरे भाई मेरे बहन तौबा कर ले, तो आगे से पहला क्या कहता है? वो कहता है मैं ही बड़ा गुनाहगार हाँ, मिन्नू बार बार कहते तौबा कर ला, तौबा कर ला। हम में से हर एक शख्स जो गुनाह की हालत में पैदा हुआ, जरूरत है कि तौबा करे, अपने गुनाहों से माफी मांगे और खुदावंद के पास आए और उसे कहे कि खुदावंद मैं इकरार करता हूं, तो मुझे माफ कर और मुझे जो है अपने पास अपने बेटे और बेटियों में शामिल कर। आए हम एक हवाला देखते हैं रोमियो की किताब, खुदा की जिंदगी बख्श कलाम में से रोमियो की किताब। पहले हम देखेंगे इब्रानियों उसका 7 बाब और उसकी 25 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। क्या लिखा है? वो उनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। वो आज भी हमारी क्या करता है? शफायत करता है। जब हम गुनाह करते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, तो अब हम उसके पास जाते हैं, हम उससे माफी मांगते हैं कि खुदा तू मुझे माफ कर। तो जो बाप है उससे हमारा मसीह आज भी हमारी शफायत करता है। वो कहता है ए बाप तू माफ कर दे, इसलिए कि ये मेरे लोग हैं, ये मेरी कलीसिया है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरे दोस्त हैं। वो हमारी क्या करता है?
وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، اس لیے کہ کیونکہ وہ آج بھی زندہ خداوند ہے۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، رومیو کے خط میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ شفاعت کرتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمارے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ پلیز آپ میرے لیے نکال دیں رومیو کا خط، اور اس کا ہے رومیو کا خط، اس کا 8 باب اور 34 آیت۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری شفاعت کے لیے آج بھی وہ خدا سے ہماری شفاعت کرتا ہے۔ رومیو 8 باب اس کی 34 آیت۔ کون ہے تو مجھے مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا، اور خدا کی دائیں طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو معاف کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے پاس لے آئیں، کیونکہ جو شخصی نجات دہندہ ہمارے لیے اپنے لہو کو بہا سکتا ہے، تو کیا ہم اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کر کے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کر سکتے؟ اس پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔